Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue the general concept of chemical bonding. Okay. Yesterday we had discussed about the octet rule and hydrogen and helium are exception. They form duplet. Okay. So we will continue the structure that how molecules share their electron to form bonds. Okay, so we had discussed about water molecule in last lecture. So today we will continue with methane. C2H4 is ethylene or ethene, and C2H2 is ethine or acetylene. It is just revision of your 10th class. Okay, you know the naming of the carbon compounds. CH4 means 1 2 3 4 4 hydrogen, and C2H4 is having double bond 2 carbon, and both carbon have 2 hydrogen. This is C2H4, and C2H2 is carbon carbon having triple bond, and they have 1 hydrogen. Okay, so this is methane, this is ethene, and this is ethine. Its common name is acetylene and its common name is ethylene. Ethylene is used for the ripening of fruits. Okay, so we will discuss the number of electrons shared in each compounds. So for carbon there are 4 electrons, 1 2 3 and 4, and 4 hydrogen have 1 electron. So 1 hydrogen will share 1 electron from carbon and they will form bond. Okay, and carbon have 4 its own electron and 4 from 4 hydrogens, 4 from 4 hydrogen, so it will have 8 electrons in its valence shell. Okay, total. So now it's completing its octet, so it is a stable CH4. Next is C2H4. So one carbon have 4 electron, 1 2 3 4, another carbon have 1 2 3 4, and 2 hydrogen this side with 1 electron, and another side 2 hydrogen with 1 electron. So they will share their electrons in that way. So one carbon have 4 and 2 from hydrogen, total 6, and 2 from carbon, total 8. Okay, and for this carbon 4 5 6 and 7 and 8. So there are two bond pairs, and here single bond. Okay, it is for ethylene or ethene. Next, C2H2, 2 carbon 2 hydrogen. So one carbon have 1 2 3 and 4, and this carbon 1 2 3 and 4. One hydrogen have 1 electron, another hydrogen have 1 electron. So 1 electron will be shared with hydrogen. Okay, and this carbon have 3 4 5 and 3 from this carbon, total 8. And this carbon have 4, 1 from hydrogen, 5 and 3 from this carbon, total 8. So these 3 electrons are shared, so there are triple bond, and these are single bond. Okay, so it is methane, it is ethene, and it is ethylene. So remember that one single bond is sigma bond, and in double bond there are 1 sigma and 1 pi bond. Okay, it is basic thing that you have to remember, you have to learn these things. Okay, before you start that chapter, that if there is triple bond, then middle one is sigma bond and 2 pi bond. Means in triple bond there are 1 sigma and 2 pi bonds. Okay, in double bond there are 1 sigma and 1 pi bond, and in all single bond there are sigma bond. Okay, means pi bond is
ओनली पॉसिबल इफ़ देयर इज़ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पहले से अगर सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तभी वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ओके, इसका भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स कि पाई बॉन्ड तभी क्यों बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। कि हमेशा याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एक है, ये शेयर करता है इसके साथ और ये शेयर करता है इसके साथ। ओके, सो देयर इज़ वन सिंगल बॉन्ड। सो हाइड्रोजन में क्या सिचुएशन है, 1s1, अनदर हाइड्रोजन है 1s1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों में s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल आपने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरा s भी हाइड्रोजन का क्या है, स्फेरिकल शेप का है। तो इसमें जो शेयर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, ठीक है। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से s ऑर्बिटल के यहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और कैसे बन सकता है, सिर्फ s और s से बन सकता है क्या, नहीं, ये s और p से भी बन सकता है, p और p से भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था H2, ठीक है। अब इसके अलावा हमेशा s ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व है ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो हम बात करेंगे अब, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन में हाइड्रोजन के साथ जब यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन में क्या होगा, s ऑर्बिटल, देखिए। ओके, और कार्बन में p ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल आपको पता है डम्बल शेप का होता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखाते हैं 2 लोब्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका s ऑर्बिटल, और कार्बन का p ऑर्बिटल। तो इसे हम देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, p एंड s। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये s है और ये p ऑर्बिटल है। ओके, तो अगर आप देखें एक्सिस इसकी, तो ये है, और s में तो आपको पता है कि स्फेरिकल होता है, तो इसमें कोई भी हम हेड या साइड वाइज नहीं कह सकते। इसमें स्फेरिकल होने की वजह से फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्बिटल का, तो उसे हम 3D में इमेजिन करेंगे तो वो कहीं से भी ओवरलैपिंग ऐसे ही होगी। लेकिन इसमें एक्सिस देखिए आप, ये एक्सिस है कि ये हेड जो होता है p ऑर्बिटल का वो ओवरलैप करना चाहिए, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, अनदर एग्जांपल p और p भी है, देखिए जैसे ये है, इस एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, दोनों के हेड टू हेड ओवरलैपिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ हम एग्जांपल देंगे p p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ s और p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, और p और p में साइड वाइज भी ओवरलैपिंग हो सकती है। ओके, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर साइड वाइज ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर भी। तो p और p में यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी वो कम होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है s और s से, s और p से, p और p से भी, ठीक है, ये सब से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड s और s से पॉसिबल नहीं होता। p और p में पाई बॉन्ड बन सकता है, d और d में भी पाई बॉन्ड बन सकता है। ओके, d एंड d, p एंड p एंड d एंड p, ठीक है, ये सब डंबल शेप के होते हैं, इनके में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इस टाइप के पॉसिबल हैं, लेकिन s में पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। एंड सिग्मा इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एंड सिग्मा में स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट जो है ओवरलैपिंग का वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरी कंडीशन हमने आपको अभी बताई थी, यहाँ पर जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उसके बाद ही p में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी पाई बॉन्ड बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना कंपलसरी है। जैसे
स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब जब ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और फिर इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो सकती है। देखिए यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग ये वाली हो रही है, ओके, यहाँ ये वाली ऊपर नीचे लोब्स में, इसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ओके, तो अगर एक सिग्मा एक पाई यानी डबल बॉन्ड का एग्जांपल है। और अगर एक और पाई बॉन्ड बनेगा तो देखिए ऐसे हम दिखाएंगे इसको, ओवरलैपिंग कि इससे ओवरलैपिंग होगी और इसकी इससे ओवरलैपिंग होगी। ये क्या होता है, इसको 3D में आप इमेजिन करेंगे तो ये एक्सिस चेंज हो जाती है इसकी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड, देखिए, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो कोई इस लोब पे है, इस एक्सिस पे है, ये लोब इस एक्सिस पे है, ये इस पे। तो ऐसे दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन ये 3D में जो आप देखेंगे तो जैसे आप अपनी फिंगर्स में बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे देखिए, ये फिंगर्स हैं आपकी सपोज, ओके। तो ये थंब है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो आप ऐसे देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, एक्स वाई जेड इस तरह से। तो डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होंगे तो वो आपस में ओवरलैप नहीं होते। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो सेकंड वाली होगी वहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से होता है और डिफरेंट एक्सिस में होगा, ठीक है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, मीथेन, इथीन और इथाइलिन, इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के, यानी कि उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो चीज़ दिखा के बनाएंगे। और फिर यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो बन रहा है वो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट्स योर असाइनमेंट, ओके। यू हैव टू शो योर कॉपीज इफ़ आई विल आस्क, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक, ओके। ये काम आपको भी करना है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहले स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस करेंगे, एंड यू कैन कंप्लीट योर थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ NCERT बुक, ओके, इन दैट ड्यूरेशन। और फिर हम इसे थॉरली फिर टॉपिक वाइज बुक से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।